Okay, so I'll begin with this quote here. Okay, so a man who does not read has no advantage over a man who cannot read. So do you agree with this? Yes, sir, strongly agree. Strongly agree, yes. But the point is, we strongly agree, but still we don't. Most of us don't, for whatever reason. I'm not trying to pinpoint. That's something which is as we just discussed, that it's there, right? Uh, can't help it. But then we need to. Okay, I would look at it as in a different way. That when we were young, we used to have very limited access. Okay, I remember even in music. Okay, we used to have those cassettes. We never used to have even CDs when I started in my school days. And we used to, I mean, now when I look back, I really wonder कि उस टाइम पे हम लोग कैसे कहाँ कहाँ से गाने ढूंढ ढूंढ के, दे यूज्ड टू बी मैगजीन्स की कौन से टॉप ऑफ द चार्ट चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं, कैसेट्स. आई यूज्ड टू लिव इन इंदौर, which is not obviously Delhi or Mumbai, but is a mid-sized town. But we used to locate shops which were selling these Western music and compilations, and then we used to जाते थे कैसेट्स को. देन वी यूज टू गेट देयर वर शॉप्स जो कि आपके लिए अलग अलग मिसलेनियस गाने रिकॉर्ड करते थे एंड ऑल दोस. तो दोस थिंग्स वी यूज टू डू. बुक्स के लिए भी ऑब्वियसली स्कूल की लाइब्रेरी होती थी द बेस्ट सोर्स. बाकी कुछ होता नहीं था, तो वी हैड वेरी लिमिटेड चॉइस. मे बी दैट रियली, अभी आजकल चॉइस, यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. आई मीन यू एनीथिंग यू वांट टू डू, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर स्टेयरिंग एट योर फेस. तो आप कहाँ पे घुसोगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. So, uh, yes, so reading is extremely critical. And obviously, when the career that you are trying to get into, which is a management career, and the growth to that, obviously, the more widely read a person is, there is a direct correlation. इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि आप अगर ऊपर कॉर्पोरेट लैडर में क्लाइम करोगे इन गुड रेपुटेड बिग कंपनीज. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ठीक है, अभी थोड़ा सिस्टम चेंज है. वी हैव स्टार्टअप्स, वी हैव these unicorns, we have all kinds of companies. But जो traditionally well established companies, when I was young, and we used to look at companies like HUL or ITC or Procter and Gamble, or for that matter Coca-Cola or Pepsi. I mean, these used to be dream companies at that time. तो इनके जो भी CEOs होते थे, जो भी top echelons होते थे, we used to read about them in different publications. And the one factor that always used to be common in all of them was that they were extremely well read. Okay? And so that thing has to be there, because आप, as we discussed yesterday also, कि आप जो एम कर रहे हो वो एक जर्नलिस्ट वाली चीज एम कर रहे हो. यू आर नॉट गोइंग टू बी अ स्पेशलिस्ट. तो जितना ज्यादा आपकी वैरायटी और होराइजन आपके ब्रॉड होंगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी. बिकॉज see, one thing is there in this world, that everything is connected to everything else, however unlikely that may seem. बट हर चीज का कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको मिलेगा. एंड द मोर यू रीड, द मोर यू विल बी एबल टू कनेक्ट. So that's the mantra, right? So now, having said that, let's look at कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा अब फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, we are so obviously the near term or short term approach is that we have to score very good in CAT and in other exams, so that obviously we get into a good management school. And obviously the medium and long term objectives are as we discussed. So if you look at CAT, so we have CAT 16 questions, right? 4 RCs, and each RC having 4 questions. Now, the challenge over here is not that these RCs, okay, they may be a little difficult to read also, but the biggest problem here is the time constraint, right? Agar if given enough time, maybe you can make more sense of these RCs than what you have to do in that time constraint. So हम जब अभी शुरू करेंगे, तो obviously we'll take a little more time to read. बट एक आइडियल ऑप्टिमम टाइम आपके हिसाब से एक पैसेज को कैट में रीड करने का कितना है? हाउ मच शुड वन रीड, नहीं मतलब पूरा पैसेज को रीड करके उसको सॉल्व करना. 4 minutes. 4 minutes for reading is what you're saying, and answering questions. तो इन ऑल देखो, अगर आपको ऑप्टिमल, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑप्टिमल स्कोर. और okay, what, let's say somebody is aiming for 99 percentile, let's aim for that. Okay, itna to aim karna hi hai humko. Okay, because as I discussed yesterday, VRC is a very scoring section, and we need to make full use of it. So 99 percentile लाने के लिए आपको let's say you need 38 39
marks, raw marks, let's say 38, 39 is the score that you need, right? Now 38, 39 को अब अगर हम backward calculate करेंगे तो आपने अगर let's say you attempted 16 questions, right? 16 questions means you were aiming for 48, 16 into 3. लेकिन आपके इसमें देखो, अगर हम एक एक्यूरेसी की बात करेंगे आरसी में, तो 75% एक्यूरेसी इज व्हाट इज अ गुड एक्यूरेसी इन VARC सेक्शन, 75 to 80. ओके, इससे ज्यादा निकालना becomes too conservative. That means if somebody is having an accuracy of 80 to 85, 90%, or even 100%, I would say that they are very conservative. And an accuracy of 50% or 60% is you are little reckless. So we should have an optimal balance between the number of attempts and how many we can get them right. तो आपको 48, let's say अगर आपने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 75% एक्यूरेसी मींस 12 करेक्ट मार्क्स, 12 करेक्ट क्वेश्चंस हुए, तो 12 से आप हिट करोगे 36. और नेगेटिव, आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ नेगेटिव्स, लेट्स से 2 या 3 आपने माइनस कर दिए, तो आप 33 पे पहुंचोगे. तो अगर आप 16 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको you are hitting 33, which is below your aim of 99 percentile. तो इसलिए हमें we need to, I mean that's what I will prepare you all for, that हमें 20 questions attempt करने हैं roughly, or 18 to 20 questions, which means 3 RCs attempt करनी है, right? 3 RCs attempt करनी है हमें. So 3 RCs and let's say 8 VA questions. If this is what we want to attempt, then we have 40 minutes. तो आप अगर let's say you take 9 minutes into 3, which is 27 minutes, and maybe 12 minutes for VA, which means 1.5 into 12, right? So so 1.5 into 12, which is into 8, 12 minutes, 39, roughly thereabouts, 40 minutes or so. तो ये अगर हम इस पे एम करेंगे तो then we'll be able to almost hit there, which means 9 minutes at max, 9 minutes for an RC, right? Now 9 minutes for an RC translates into again 2 parts. One is reading, okay, one is reading, and one is the answering questions. So what I would kind of want you to be prepared for, I mean I'll kind of, whatever हम जो aim करेंगे and I'll train you for is how to read it within 3 minutes and then answer question within 6 minutes, give or take. डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे अगर है तो कुछ 2.5 मिनट में ही पढ़ लोगे आप, कुछ 3.5, हो सकता है किसी में 4 भी लग जाए, बट रफली, एंड दिस इज फेयरली अचीवेबल, बिकॉज इसमें अगर हम देखें तो द वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं इसकी आरसी में, वो रफली 500 वर्ड्स होते हैं. 500 वर्ड्स में की एक नॉर्मल कैट की आरसी होती है, अगेन ±20, so which further translates into 166 or 160 to 170 words per minute. Now how many of you have actually measured at any point of time your reading speed? कभी आपने कुछ measure करके देखा? Anyone has tried measuring the reading speed? Okay, हरमीत ने किया है, कितना निकला था? Any idea? मोटा मोटा 10 minutes for passage. अच्छा नहीं, I am talking about in words per minute. Okay, 10 minutes for passage, 10 minutes for reading the passage, और 10 minutes में solving the passage completely, reading and solving. Okay, तो okay, ठीक है. So words per minute जो है, एक average जो आप लोग I think you all would have an average speed of 150 easily. मतलब ये this is not a very great reading, great in the sense this is not a very quick reading speed. 150 is okay. Now question arises कि क्या रीडिंग स्पीड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या कैट में के लिए रीडिंग स्पीड, ओके, लेट मी गेट योर व्यूज, इज रीडिंग स्पीड एन impediment, or is reading speed an obstacle or not? If yes, then why, and if not, then why not, and how can we overcome that? So any views anyone has? Yes, Reading sir, speed, because we are bounded with time, so obviously reading speed matters. बट रीडिंग स्पीड का जैसे मैंने आपको अभी कहा यहाँ पे कि आपको 150 वर्ड्स पर मिनट अगर आपकी है, विच आई एम श्योर यू वुड हैव करंटली, इनफैक्ट 200 भी हो सकती है अगर आपकी, ठीक है, तो इन दैट सेंस यू आर नॉट चैलेंज्ड.
but we need to comprehend the passage along with reading. How can quick reading help here? Yes, that's what I'm coming to. I'm coming to that only. Ki reading speed matters, yes, but where it doesn't matter. There are two ways of looking at this thing. We cannot say blanket in a blanket manner that reading speed is critical. और अब आप जैसे कई कई साइट्स पे जाएंगे या कई लोग जो सिखाते हैं जिस तरह से आरसी कई इंस्टीट्यूट्स में, वो रीडिंग स्पीड, हाउ टू अटेन लाइटनिंग क्विक रीडिंग स्पीड, वो सब गिमिक्स हैं. ओके, बिकॉज अभी जैसे सप्तऋषि ऑल्सो मेंशन दैट कैट के पैसेज में अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे जाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, because these are not passages which are very straightforward and which lay down a narrative in the manner of a story. ऐसे पैसेज नहीं है ये. इसमें तो आपको समझना पड़ेगा. आपको पहले तो रिस्पॉन्स टाइम आपका लगेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज जो भी आप पैसेज इस बारे में होगा, आपने उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, उसके बारे में सोचा नहीं है, तो आपका रिएक्शन टाइम ही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. that is why we say that when we practice, we will practice from all diverse areas. मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं वो हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट बाय द टाइम यू आर डन यू वुड हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 300. मतलब 300 तो 300 भी मैं भी शायद कम ही बोल रहा हूँ. 300 आरसी तो आप लोग कर चुके होंगे मेरे साथ में. तो 300 आरसी करके आपको आपका रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत क्विक हो जाएगा किसी भी आरसी को लेके. ये एक होना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो वी कैन वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड टू इट. एंड इफ the terminology or jargon or the names of the people in the passage are totally alien to us, then we will need more time to respond. तो रीडिंग स्पीड पर से कैट के पैसेज में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 450-500 वर्ड्स के पैसेज हैं और हमें उसको 3 मिनट में पढ़ना है, तो नॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम. बट रीडिंग स्पीड इज, यस, इट्स इंपॉर्टेंट वेयर, बिकॉज यू हैव टू रीड अ लॉट. जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव टू रीड अ लॉट, राइट? यू विल बी, I'm not talking in terms of reading comprehension passages only. क्योंकि अगर हम देखो, हम हर चीज़ अगर पैसेज की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो वो एक शॉर्ट टर्म और नैरो अप्रोच होती है. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि सर ये रीडिंग करने से क्या फ़ायदा, एओन के ऐसे क्यों पढ़े हम, उसकी बुक क्यों पढ़े हम, उसके ये आर्टिकल्स क्यों पढ़े हम जो आप भेजते हो, हम तो सीधे आरसी के पैसेज ही कर लेंगे ना, वही रीडिंग हो जाएगी. तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन, एंड पीपल हु हैव ट्राइड इट, देयर आर many who have tried it and failed miserably. Because it doesn't work that way. Reading, this is not a something कि आपको दवाई पिला के और तैयार कर दिया गया है, डोज दे दी गई है, 3 आरसी एवरी डे विल कीप द डॉक्टर अवे, ऐसा नहीं. ठीक है, आपको इसमें देयर इज अ मेथड टू इट, तो आपको उस हिसाब से चलना है. तो बट देन यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड. सो व्हेन वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, देन वी नीड टू इंक्रीज आवर स्पीड. तब थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी हमें. एंड ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन, अगर टेक्स्ट आसान है तो हम क्विकली पढ़ लेंगे उसको, टेक्स्ट मुश्किल है तो मुश्किल से तो थोड़ा टाइम लगा के पढ़ेंगे. ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट भी होगा बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट चूजिंग द पैसेजेस और सिलेक्टिंग द पैसेजेस, देन इट हेल्प्स इफ यू आर एबल टू क्विकली, लेट्स से फर्स्ट पैराग्राफ है या आधा पैराग्राफ है, आपने क्विकली अगर उसको देख लिया और आपको समझ में आ गया कि यार ये तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं आगे नेक्स्ट पे जाऊँगा. एंड देन so on and so forth. In a CAT kind of scenario, every year it's been seen generally that they give one passage very difficult, two passages, one passage is little difficult, moderate to difficult, and two passages are easy to read and understand. Now, if you are not able to quickly decide कि किस किस को करना है, तो आप हो सकता है you end up getting into a wrong passage and you end up then regretting later on. बाद में जब आप वो जो छोड़ दिया उसको देखोगे कि अरे यार ये तो बड़ा आसान था. So that thing should not happen. That's why we need to be also able to read quickly and assess. जो क्विकली रीडिंग वाली बात है उसको हम कई बार स्किमिंग एंड स्कैनिंग बोलते हैं. स्किम एंड स्कैन, राइट? स्किमिंग बेसिकली मीन्स क्विकली गोइंग ओवर इट, ट्राइंग टू जस्ट रजिस्टर what is the idea, what is the background of this, where from the author is coming, what is he trying to suggest. तो थोड़ा आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स. स्कैनिंग बेसिकली मीन्स लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक वर्ड्स और स्पेसिफिक फ्रेजेस. सो दिस स्कैनिंग टेक्निक इज यूज जब आप कोई आंसर ढूंढ रहे हो किसी पार्ट ऑफ द पैसेज में, then you resort to scanning. And if when you are trying to get an impression of the passage, then that is basically skimming. But obviously these are all not really the mainstay of your reading. ये आपको हेल्प करेंगे, लेकिन these are not the mainstay. Okay, because एक क्वेश्चन और आता है लोगों के दिमाग में जो सबसे पहले ही I would rather kind of clarify it. Many people, let me ask you also, how many of you think that first we should read the question without reading the passage?
ऐसा कोई But है जो सोचते it's हैं? not that we think that, but like when we used to have reading comprehension in our school time, we used to get two passages. So this was what I used to do. I used to read the question first so that I just had a clear like setup, like what answers do I need to find here. करेक्ट, I वेरी was just going to ask the same question as well. राइट, Is it wrong or right? correct, very good. So let me ask anyone else what are his or her views on this. So we all used to do that in school. I mean that's a very common practice कि आप क्वेश्चन देख लेते थे कहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन है, फिर जाके आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको आसानी होती है वही क्वेश्चन ढूंढने में उनके आंसर्स, तो यू कैन सेव योर टाइम, राइट? तो ये सभी लोगों ने किया है. बट इज दैट नाउ वाइज थिंग टू डू, एंड इफ यस देन इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, इफ नॉट देन व्हेन नॉट? So anybody would like to answer this? Okay. तो जब थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेजेस होते हैं तब तो काम आती है ये, Hmm. बट जब कुछ भी डिफिकल्ट फेस होता है Hmm. तब आई डोंट थिंक ये चीज मतलब और ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है फिर उसको सॉल्व करने में। Right. Sir, I think the passages which used to come in school, the questions were like they were different and easy to find out. But I think here the task is a bit confusing and Yes. it's difficult to Correct. find. Correct. So there are two parts to this. Okay. One is the type of questions that are asked or abhi, and then the type of questions that were asked in school days. So there is a huge difference. जो स्कूल के टाइम पे या जो हमने बेसिक हमारे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेजेस वगैरह करते थे उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस. दैट मीन्स द आंसर कैन बी फाउंड डायरेक्टली इन द पैसेज, इट विल बी रिटन समवेयर एक्सप्लिसिटली. ठीक है, एक्सप्लिसिटली वो वहाँ पे लिखा हुआ. और एक और चीज़ होती थी कि जो उसमें जो कंटेंट भी होगा वो आपको इतना प्रोफाउंड डीप और कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होंगी. तो आपको उसमें वो हेल्प करती थी. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज कंपाउंडेड बाय वन इज द पैसेजेस आर कॉम्प्लेक्स. पैसेजेस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. ओके, आपको इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू सजेस्ट हियर, एंड हाउ इज ही प्रेजेंटिंग हिज आइडियाज. मेन आइडिया क्या है उसका, कैसे सपोर्ट कर रहा है उसको, कैसे अपना केस बिल्ड कर रहा है वो. तो आपको पहले तो वही समझना है. अब आपने अगर अपने ऊपर क्वेश्चन का बैगेज ले लिया पहले कि क्वेश्चन देख लिए, तो आपने आप वो समझने की हाउ विल यू, योर माइंड इज नॉट काइंड ऑफ बाय कैमरल और समथिंग विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. के अपने एक पार्ट में पार्क कर लिया आपने क्वेश्चंस और दूसरे पार्ट से रीडिंग कर रहे हो और फिर को रिलेट करते यार अच्छा ये इन पे, ये मुश्किल हो जाएगी. ठीक है. सेकंड इज दैट दीज क्वेश्चंस देमसेल्व्स आर वेरी ट्रिकी. दे आर नो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. ओके, कैट में आप देखेंगे तो आजकल एक जो ट्रेंड चला है वो डबल नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव, डबल नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, which of the following is not likely to strengthen the author's argument except. तो अब ये देखो, which of the following is not likely to strengthen the author's argument except, this is double negative. तो which means which of the following is likely to strengthen author's argument. तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा, और उसमें भी तीन तीन वाले भी होते हैं. which of the following if false is not likely to contradict the author's argument except. Now here you have three negatives. तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चन पढ़ भी लोगे, इट विल नॉट हेल्प यू इवन वन बिट, बिकॉज द क्वेश्चन देमसेल्व्स आर फ्रेम्ड इन अ वे सो एज टू कंफ्यूज. तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना इज बेसिकली नॉट रियली गोइंग टू हेल्प बिफोर गोइंग एंड लुकिंग एट द पैसेज. बट येस, अंडर वन कंडीशन इट माइट हेल्प इन द सेंस, लेट्स से यू हैव डन टू पैसेजेस, हमें तीन करने हैं, आपने दो तो कर लिए, अब आपके पास में थर्ड एंड फोर्थ बच गया, टाइम भी आपके पास लिमिटेड है, अब एक ही कर सकते हो. तो आप जरूर ये कर सकते हो कि इसके क्वेश्चन देख लिए, इसके क्वेश्चन देख लिए. सर्टन टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन वी डू दैट टॉपिक, क्वेश्चन टाइप्स जब हम करेंगे आरसी में, तब हम देखेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोकैब बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, कि उसमें सिंपल अगर कोई वोकैब का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो दोज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई मीन इन द सेंस यू कैन डू इट वेरी क्विकली. और अगर मेन आइडिया के क्वेश्चन है तो मेन आइडिया भी आपको एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा, इट विल नॉट पोज टू मच चैलेंज. लेकिन अगर बहुत सारे इन्फ्रेंस वाले हैं कि विच ऑफ दीज इज द ऑथर, हैज द ऑथर, विच ऑफ दीज मैचेस विद द ऑथर आर्गुमेंट इन द पैसेज एक्सेप्ट, अब वो चार उसके ऑथर के पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ द पैसेज में है,
तो it will take a while to figure out all of those and then it is an accept वाला question. This kind of question will take a little longer time. तो आपके पास में अगर टाइम कम है तो आप क्विकली क्वेश्चन के ऊपर ग्लांस कर सकते हो एंड देन यू कैन मेक अ चॉइस कि ठीक है ये वाले में लग रहा है मुझे ये हो जाएगा. तो इन दैट सिनारियो ओनली दिस थिंग वर्क्स, अदरवाइज इट माइट नॉट वर्क. सो दैट्स माय टेक ऑन दिस. एंड सो इसलिए हमको उसको शुरू से ये हैबिट तो बनानी नहीं है, राइट. सो देयर इज नो व्हेनेवर वी डू एनी पैसेज, व्हेनेवर वी डू एनी एक्सरसाइज, एनी टेस्ट, सो वी विल नॉट रिसॉर्ट टू दिस कि क्वेश्चन पहले देख लिए और उसके बाद में पैसेज पे आ गया. सो दैट्स अ स्ट्रिक्ट no फॉर द बिगिनिंग. व्हेन वी गो टू द मॉक लेवल एंड दैट लेवल, देन वी विल फिगर आउट व्हाट टू डू. बट वैसे उसको हमें नहीं देखना है, राइट. तो क्वेश्चन नहीं देखा हमने. वी नीड टू अगेन कमिंग बैक टू दिस, रीडिंग की स्पीड थोड़ी सी बनानी. अब रीडिंग की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए? ओके, हाउ टू इम्प्रूव द रीडिंग स्पीड, हाउ टू इम्प्रूव विद इन वट एवर. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको 5x बना लो, 10x बना लो. ऐसी भी किताबें भी आती है, एक किताबें आती है इसके ऊपर, हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड 10x. तो वो सब नहीं करना है हमको. ओके, वी डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल दैट गिमिक्री, बट विद इन द नॉर्मल कंस्ट्रेंट हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एनी आइडिया? अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से तो चीजें इंप्रूव होती है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट. बट प्रैक्टिस में भी हमें क्या करना चाहिए? व्हाट होल्ड्स अस बैक? what are the impediments in this, or what kind of holds the reading speed back? So any there are a few factors here. Or by leaving tough lines or words. By leaving tough lines or words, तो फिर तो आपको समझ नहीं आएगा ना. वो तो फिर आपने अगर छोड़ दिया वो टफ लाइन और टफ वर्ड, तो फिर आपने हो सकता है क्रक्स मिस कर दिया हो. एक लाइन के अंदर पूरा सार छुपा हुआ हो सकता है पैसेज का. तो वो तरीका नहीं. दैट इज नॉट, that could be done when you are very short of time, और आपको क्विकली 2 मिनट में कुछ निकालना है तो अलग बात है. बट नॉर्मली रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? जी, एक तो इसमें जैसे एक पॉइंट है, मे बी नॉट, मे बी नन ऑफ यू बट और सम ऑफ यू मे बी वोकलाइजिंग. do you mumble or do you vocalize when you read? Anyone vocalize करते हैं क्या? कई बार कई लोग हैं, हमें रियलाइज भी नहीं होगा. वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी वोकलाइज. हमें पड़ोस वाला बताएगा कि अरे, जैसे आप इवन कैट की एग्जाम में कई बार बैठोगे तो आपके बगल में जो लिख रहा है पेपर, वो अगर ऐसा निकल गया तो इट बिकम्स अ वेरी बिग इरिटेंट. तो कई बार तो लोगों को उसको चुप करवाना पड़ता है, वो इन्विजिलेटर को बोलना पड़ता है कि इन्हें चुप कराइए. वो जोर जोर से बोलता है, उसकी आदत बनी हुई है. मैनी पीपल इन द क्लास ऑल्सो व्हेन वी गिव एन आरसी, और अगर उन्होंने म्यूट नहीं किया हुआ है अपना माइक, तो वो आपको उनकी आवाज आएगी बोलते हुए कि वो पढ़ रहे हैं So इसको. it's easy to understand when you vocalize, not very Hmm. loudly, but Hmm. slowly. Hmm. Like reading and mumbling is, Hmm. it's hard to understand while you mumble up. But when you vocalize Hmm. it a bit, Hmm. then it's more easy, I think. No, so do you do it, or you are kind of Yeah, guessing why slowly. people? You do a little bit. Yes, sir. हाँ, तो देखो वो फिर उससे आपकी स्पीड कम होगी डेफिनेटली. क्योंकि आप जितने वर्ड्स पर मिनट बोल सकते हो, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा रीड कर सकते हो. बट बिकॉज यू आर लिमिटिंग दैट स्पीड बाय मम्बलिंग और वोकलाइजिंग, तो आप थोड़ा कम करें. तो आपको इसको थोड़ा सा यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस ग्रेजुअली. बिकॉज वन इज when you are sitting in an exam and or anywhere and you are reading it loudly, then the others might have an objection, right? So you need to let go of that. दूसरा ये है कि इससे आपकी हैम्पर हुई स्पीड, तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू सी टेक्निक्स रीडिंग को कैसे करना है. अभी पैसेज को वो हम करते जाएंगे. वी विल फिगर आउट हाउ टू अंडरस्टैंड इट, हाउ टू मेक मोर सेंस ऑफ अ पैसेज, किस तरीके से रीड करना चाहिए वो हम देखेंगे अभी. बट वोकलाइजिंग को आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है. यू नीड टू अवॉइड वोकलाइजेशन. इसको आपको अब चेक करना है कि हम वोकलाइज करते हैं कि नहीं करते हैं. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट अ पेंसिल इन योर माउथ, इन योर लिप्स व्हेन यू आर रीडिंग, एंड इफ द पेंसिल फॉल्स देन दैट मीन्स यू आर वोकलाइजिंग, एंड इफ पेंसिल डजंट फॉल इट मीन्स यू आर नॉट. तो ये एक टेस्ट हो जाता है अगर हमें श्योर नहीं है हम कि वोकलाइज करते हैं कि नहीं करते हैं. तो इसको अवॉइड करना है, वी हैव टू अवॉइड. कॉन्शियसली हमें थोड़ा अवॉइड करेंगे तो हो जाएगा. इसके बाद एक और चीज होती है सब वोकलाइजेशन. दिस इज बेसिकली रीडिंग इन योर माइंड आउट टू योर सेल्फ. ये तो आप बोल के सुना रहे हो अपने आप को, माइंड को. यहाँ पे आप बिना अपने माइंड को बोले हुए भी सुनाते हैं.
दिस आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी डज. डू यू एग्री? सारे लोग करते हैं इसको. Yes, sir. It is very difficult to let go of. Very difficult to let go of. Only very accomplished readers. लेकिन if one is able to do that, then उसकी स्पीड जो है वो रीडिंग स्पीड वाकई में बहुत 4x 5x बढ़ सकती है. बट इट इज चैलेंजिंग. इसको अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो ऐसे कि यू कैन while reading you can do some other activity. आप कान में म्यूजिक चला लो अपने and see how much you can focus and read without in that case. अगर आपने कान में म्यूजिक चला लिया और आप रीड कर रहे हो तो फिर वो सब वोकलाइजेशन नहीं होगा अभी. दैट्स वन टेक्निक. सर बट इससे मतलब मैंने रियलाइज किया है कि मेरी तो काफी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाती है किसी भी पैसेज की. मतलब अगर ये नहीं हो तो मेरे को फिर से जाके पढ़ना पड़ता है. लाइक इट्स लाइक कि मैं वो हो चुका हूँ, स्पेस आउट कर चुका हूँ कहीं पे और मुझे समझ नहीं आया जो मैंने पढ़ा है. नहीं वो ठीक है. आई बिकॉज सी दैट इज अ हैबिट that has been formed a habit and you think that you cannot do without it. But if you when we look at what is a better way of comprehension or retaining what we have read, when we look at that, then you might feel कि ठीक है इसको भी हटा सकते हैं. but fine, I'll not insist. मैं आपको ये insist नहीं करूँगा कि हटाना है. अगर आपको इससे लगता है कि you are comfortable with it, then it's okay, perfectly okay. क्योंकि ये हटाना काफी मुश्किल है और जब आप उस लेवल की रीडिंग करोगे तो अपने आप ही वो फिर हटेगा. क्योंकि वंस यू स्टार्ट रियल गुड अमाउंट ऑफ रीडिंग, इफ यू स्टार्ट डूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है. बट नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको चलने दो. बट somebody who wants to do it, who is already at that level, जैसे आप ऑलरेडी 300 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे हो, 250 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे हो और आपको आगे बढ़ाना है तो आप कर सकते हो. ये कर सकते हो आप. नेक्स्ट is basically called regression. Okay, what is regression? ये भी एक हमारी एक हैबिट है जो कि हमें रीडिंग की स्पीड में हमारे हैम्पर करती है. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रिग्रेशन? कभी सुना है आपने किसी ने? देखो रिग्रेशन मतलब ये होता है कि बार बार स्टार्ट में चले जाना. ओके, रीस्टार्टिंग द पैरा और द सेंटेंस. ये करा है, कई लोगों ने करते हैं, यूजुअली करते हैं. इवन आई माइट बी डूइंग इट समटाइम. बट ये करते हैं. जैसे हमने पढ़ना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक सपोज देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो गया. यहाँ से यहाँ तक हम जब पहुंचे यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, फिर से चलते हैं. या यहीं से चलेगा वापस. ऐसा होता है Yes, sir. Many a Yes, times. sir. many a times, right? So this is what is called regression. ये क्यों होता है? देखो ये क्यों होता है. Because right from the beginning हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है that basically focuses on rote learning. हमें हर चीज रटने की आदत लगाई जाती है. तो आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि यार दिमाग में छप नहीं जाएगा ये, तब तक मजा नहीं आएगा कुछ. तो आप उसको एक तरह से मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो उसको बार बार पढ़ के. ऐसा होता है कई लोगों के साथ, कई लोगों के साथ नहीं भी हो. आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन. Sir, especially when you start reading a new book or yes during exam times when you open your book to read it out, yes the first chapter is very Right. difficult to understand. करेक्ट, एग्जैक्टली. दिस हैपेंस मोस्टली विद द एट द बिगिनिंग. एक बार जब आपकी गाड़ी चल पड़ी फिर चलती रहती है, राइट? तो एक बार गाड़ी चल पड़ी फिर वो कहाँ पे रुकती है? अगर सपोज करो पैराग्राफ अलग अलग है तो दूसरे पैराग्राफ पे भी रुक सकती है वो गाड़ी, है ना? मतलब आपने अगर वो पैराग्राफ बड़ा सा है उसमें पहले 2-3 लाइन में अटके फिर चले गए वापस, फिर एक बार आ गए और फिर चल पड़ी गाड़ी, ठीक है? देन इट विल मूव एंड देन इट विल एंड एंड मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ हो सकता है फिर से यही हो, या मे बी नेक्स्ट चैप्टर. अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है, राइट? तो ये जो बिगिनिंग में हम करते हैं ऐसा, इसको हम अगर ना करें, बिकॉज द अजम्पशन हियर इज कि यार हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. ऐसा नहीं है. आप चलते रहो, एक बार पैराग्राफ को एंड करो, देन ट्राई टू रिकैप. अभी जब हम रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे देन we'll see what is the best way to read is to take a pause after each paragraph and to recollect. Okay, जनरली हम क्या करते हैं कि एक बार पढ़ना शुरू किया पैसेज, समझो उसमें 4 पैराग्राफ हैं, तो एक के बाद एक पढ़ते चले जाते हैं और एंड में जाके रुक जाते हैं, राइट? दैट इज नॉट द राइट वे टू रीड. You need to take a pause after each paragraph and reflect for 10-15 seconds and then move. तो ये टेक्निक से हम
we can get a much better understanding of the whole thing and can retain. Because अभी हम बात करेंगे रिटेंशन की. एक प्रॉब्लम जो रीडिंग की है बहुत बड़ी, वो रिटेंशन की होती है. सो रिग्रेशन हमें एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करें. ठीक है. हाँ, अगर जैसे अब वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैसेजेस. सम आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस, ओके, सम आर मोर कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट मतलब ये होता है कि जिसमें कुछ टैंजिबल चीज हो, जिसके बारे में आपको पता हो, जिसमें आप, जैसे कि आपने एक माउंटेन क्लाइंबिंग में होता है कि आप एक के ऊपर एक सीढ़ी पे चढ़ते चले गए, आपको सीढ़ी मिलती गई, एंड यू कीप क्लाइंबिंग, यू कीप रीडिंग. बट देयर आर सम एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस विच आर लाइक स्लिपरी स्लोप्स. उसमें आप थोड़ा सा पढ़ोगे, आपको समझ नहीं आएगा, अरे क्या हो गया, कुछ यू कांट गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग टू लैच ऑन टू. तो ऐसे पैसेजेस में ये ज्यादा होगा. ठीक है, तो वो होगा, बट ट्राई टू अवॉइड एज फार एज पॉसिबल रिग्रेशन अनलेस वी कम अक्रॉस दोज रियली एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी की टाइप के या कुछ प्रोफाउंड टाइप के पैसेजेस हैं जो कि हमने जिसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है. तो रिग्रेशन इज अनदर थिंग दैट होल्ड्स यू बैक. अनदर टेक्निक फॉर इंप्रूविंग दिस is to widen the eye span. हमारा जो आई स्पैन होता है, बिकॉज सी वी डोंट रीड, जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ रीस्टार्टिंग द पैरा और द सेंटेंस. तो ऐसा नहीं कि मैं रीस्टार्टिंग, फिर अगला आंख मेरी द पे जा रही है, फिर मेरी आंख पैरा पे गई, फिर और ऐसा नहीं है ना. वी टेक इन सर्टन नंबर ऑफ वर्ड्स एट वन गो. तो हमारा इसको बोलते हैं आई स्पैन, कि जितने वर्ड्स आप एक बार में आपकी आई कैप्चर करती है. ठीक है, बिकॉज जो आपकी ग्लांसेज हैं, तो समझो ये एक पेज है, इसमें सपोज योर आई स्पैन इज लेस, 3 वर्ड्स ही है, तो आपको इसको मूव करने में फिर 3 ग्लांस लगेंगे, राइट. वेयर इफ समबडीज आई स्पैन इज 5 वर्ड्स, देन यू विल नीड टू मेक 2 मूव्स. तो आप 2 बार में उसको पहुंच जाओगे एंड तक. तो आपका आई स्पैन को आपको वाइडन करना है. अगर हमने देखा है जनरली most of the people are attuned to reading newspapers. They are okay with reading newspapers, but they don't like to read books or any other stuff. तो difference क्या है इनमें? Newspapers are arranged in, ये बड़े होशियार लोग होते हैं, कॉलम्स में बनाते हैं, राइट. ये सोचा आपने ऐसा क्यों करते हैं? न्यूज़पेपर की जो कॉलम विड्थ होती है, दैट ऑलमोस्ट करस्पॉन्ड्स टू आवर आई स्पैन. तो आपको न्यूज़पेपर में इधर से इधर नहीं, वो एकदम ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा है वो और पढ़ने में दिक्कत होगी. आप आराम से ऊपर से एक बार में ऊपर से नीचे, सो योर आई कैन मूव लाइक दिस एंड यू फाइंड इट मोर कन्वीनियंट. ऐसा है क्या? न्यूज़पेपर पढ़ना हमें आसान लगता है सबको? डू वी एग्री? कंपेयर टू बुक्स, या नहीं लगता है ना? यस, लगेगा ही. न्यूज़पेपर वाले बहुत होशियार होते हैं, उन्हें पता है ये बात, और इसीलिए वो कॉलम में अपना सब कुछ बनाते हैं, राइट. बुक्स में ये नहीं होता है. तो you need to widen your eye span. Okay, this is also something which you can do. So reading speed में आप अब obviously you don't have to get obsessed with this and be very conscious of it, but yes, as you go along you need to at least work on this front and this front. सब vocalization में भले ही मत करो, and also widening the eye span. So these are some techniques that can maybe improve your reading speed. और reading speed आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि मटेरियल बहुत कवर करना है हमको. ठीक है, आरसी पैसेज जब हम करेंगे, कैट में तो नहीं है हमें इतनी जरूरत उतनी उस स्पीड पे पढ़ने की, बिल्कुल भी, लेकिन मटेरियल बहुत कवर करना है हमें. वी हैव टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, वी हैव टू रीड मैगजीन्स के कई सारे आर्टिकल्स हैं, कुछ बुक्स भी पढ़ेंगे हम, बहुत सारा मटेरियल पढ़ेंगे. तो जितना ज़्यादा हमें पढ़ना है उतनी ज़्यादा थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. सो दैट्स द थिंग हियर. ओके, नाउ we'll talk about the big problem in reading, okay, which is retention. ऐसा होता ही नहीं होता है कि आपने एक बुक पढ़ी या आपने कुछ भी पढ़ा, फिर किसी ने आपको थोड़ी देर बाद पूछा कि यार उसमें क्या पढ़ा था आपने, एंड यू आर ब्लैंक. कितनी बार ऐसा होता है? होता नहीं है क्या? इज इट अ न्यू थिंग और एम आई सेइंग, और इट्स अ वेरी कॉमन अकरेंस? Every semester, sir, it's a very common occurrence. वेरी कॉमन अकरेंस, राइट. ऐसा पिक्चर में नहीं होगा. पिक्चर की स्टोरी आपको याद रहेगी, राइट. आपने कोई भी सीरीज देखी, कुछ भी देखा, तो उसमें आपको, बिकॉज ऑब्वियसली पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड जैसा बोलते हैं, तो पिक्चर आपको और वो सब दिमाग में आपके छप जाती है. लेकिन एक बुक जो है या कोई भी आप अगर आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो यू हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन रिटेंशन. इनफैक्ट व्हेन वी रीड द पैसेजेस, तो मेनी स्टूडेंट्स विल से कि हमने ऊपर पढ़ के नीचे जब तक हम पहुंचते हैं तब तक हम ऊपर का भूल जाते हैं. तो क्या करें? दैट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. तो रिटेंशन के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा. वी हैव टू एक्टिवली वर्क ऑन इट. एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू improve retention is by writing summaries.
समरी राइटिंग एक बहुत ही अंडरस्टेटेड, अंडर अप्रिशिएटेड स्किल है, बट देन वी हैव टू नाउ इम्प्रूव दैट स्किल। ये हमें बढ़ानी है। देखो राइटिंग, एज आई बीन सेइंग, राइटिंग आपको काम आएगी वैट में भी, दिस योर राइटिंग एबिलिटी टेस्ट विल एक्सपोज यू अदरवाइज वेरी बैडली। आपके परसेंटाइल वगैरह बहुत बढ़िया आ गई, ठीक है, सब आ गया, आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अगर आपका ऐसे में बहुत ही ऐसे में एक तो चलो कंटेंट हो गया कि आपके व्यूज, राइट, सपोज यू हैव टू टॉक अबाउट anything, suppose you have to talk about the women's reservation bill in that particular essay, or you have to talk about maybe uniform civil code, or you have to talk about some CAA or something. तो कंटेंट तो एक चीज है, लेकिन अगर आपकी बेसिक इंग्लिश की गड़बड़ है उसमें तो फिर काफी मुश्किल, राइट, बिकॉज यू विल देन ऑब्वियसली नॉट हैव एन एज ओवर द अदर्स। तो या एज मतलब एटलीस्ट इसमें आप पैरिटी पे तो हो कम से कम दूसरे स्टूडेंट से, तो अदरवाइज आपको मुश्किल होगी डिस्पाइट हैविंग अ गुड स्कोर इन कैट एज वेल एज इन पीआई। तो इसलिए हमें राइटिंग राइटिंग स्किल्स भी सुधारनी है, एंड राइटिंग स्किल्स भी ओवरनाइट नहीं आती है, इट्स डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट अ वेरी इंजॉयबल प्रोसेस, आई नो। मोस्ट ऑफ यू वुड बी क्वाइट बोर्ड, मतलब राइटिंग सुन के, ये समरी वनरी सुन के ही एकदम से कई लोगों को तो लगने लगता है अरे ये कहाँ फंस गए, ऐसा लग रहा है क्या? लेकिन बट देन दैट्स अ हार्ड रियलिटी, राइट, एनीथिंग वर्थ अचीविंग इज नॉट ईजी। हमें सिर्फ 99.9 परसेंटाइल नहीं देखना है, उसके पीछे क्या है वो भी देखना है, तो उसके पीछे ये सब है। तो रिटेंशन करने के लिए आपको राइटिंग समरी करनी पड़ेगी ना। समरी ऑल्सो, समरी डजंट मीन कि आप पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा वहाँ पे खोल दें। कई लोगों को समरी लिखने को बोलो, एक पैराग्राफ की वो समरी वो पैराग्राफ से भी बड़ी होती है। मेनी पीपल विल राइट समरी विच इज इवन बिगर देन द पैराग्राफ इटसेल्फ, तो दैट्स रॉन्ग, राइट, वो नहीं करना है हमको। हमें उसकी समरी, तो अब राइटिंग समरी, राइट, सो दिस इज समथिंग विच विल डू। पैसेजेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इसका हम छोटा छोटा सा समरी बनाने की कोशिश करा करेंगे। तो जब आप समरी बनाते हो तो समरी बनने से क्या होता है कि आपका जो उसका जो आइडिया है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। एक हम इनफैक्ट पैरा समरी का क्वेश्चन करेंगे, we will do a para summary question where this idea is given that the more concise you try to make a summary of anything, the better you will be able to retain it, or the better you will understand the idea, because जब आप किसी भी आइडिया की क्रक्स पे घुसने की कोशिश कर रहे हो तब आप उसके बारे में रियली यू आर थिंकिंग वेरी हार्ड, एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक समरी बाय writing or by hand rather than by any other means like typing or something, because when you are writing or using pen then you are involving more than one senses. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पैरा समरी का क्वेश्चन था, उसको वो करेंगे हम एक दिन। तो समरी लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वी शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग समथिंग एटलीस्ट, मतलब ये हैबिट आपको बहुत लंबा लेके जाएगी। आज के जमाने में क्या हो रहा है, अब एक और चीज है कि वी हैव गॉट अनदर एनिमल विच इज कॉल्ड, राइट, so how many of you are actively using it for anything, for any purpose? कोई इसको actively use करते हैं आप लोग लाइफ में अपने डे टू डे में, या कभी anyone is there who is using it? Sir, many answers on chat GPT are wrong. हाँ हाँ हाँ, नो नो, वो अभी उसके बारे में बात करता हूँ मैं, अभी आई एम कमिंग टू दैट, कि अभी अभी बिल्कुल बात करता हूँ मैं उसके बारे में, बट आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द एडवांटेजेस आल्सो ऑफ इट। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट दैट blindly relying upon this is definitely going to lead you to failure. Okay, quite useful tool for understanding concepts and correcting errors. ठीक है, तो जैसे see I'll use it very liberally, but I can tell you one thing, अगर मैं कोई ग्रामर या कोई वोकैबुलरी या कुछ भी चीज इससे बोलूंगा तो मुझे there is only a 50% chance that it will be right. आप इसको इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस के क्वेश्चन डाल के देखो, इसमें हम जंबल के क्वेश्चन डाल के देखेंगे, वो बिल्कुल इराटिक है, बिल्कुल इराटिक। ठीक है, उसके अंदर आपको मतलब यू कैन नॉट यूज इट एज अ मास्टर, यू हैव टू यूज इट एज एन असिस्टेंट। ओके, इट इज एट बेस्ट अ ग्रेट असिस्टेंट, ग्रेट असिस्टेंट। और कहाँ पे इसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूटिलिटी जो मुझे नज़र आती है या जिसको हमें यूज़ करना चाहिए, जो मैं करता हूँ, तो वो बेसिकली है इसकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है इसकी, वो काफ़ी ठीक है। जैसे आपको मेन आइडिया निकालना है, ठीक है, किसी पैसेज का, या आपको समरी लिखनी है, ठीक है, यू हैव टू राइट अ समरी, और यू हैव टू काइंड ऑफ
प्रिपेयर अ जिस्ट ऑफ इट, और इस तरह के अगर आपको कुछ करने हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा टूल है। लेकिन उसको करने के बाद भी आपको उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक इट कि उसने लिख दिया तो वो सही है, नो, यू हैव टू सप्लीमेंट इट विथ वॉट एवर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल थिंग इज। तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि अब जैसे मैंने आपको एक आर्टिकल दिया या मैंने आपको कोई भी पैसेज दिया कि इसकी समरी बनानी है, तो अब सबसे आसान तो ये है कि आपने जाके चैट जीपीटी में टाइप कर दिया कि भैया इसकी समरी बना दे, तो उसने आपको समरी बना के दे दी और आपने पकड़ा दी। दैट्स ऑफ नो यूज, दैट्स एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज। द बेस्ट यूज कुड बी, आप एक समरी बनाओ, ठीक है, वट एवर नंबर ऑफ वर्ड, सपोज आई से दैट मेक अ समरी इन 100 वर्ड्स, ठीक है, या वट एवर नंबर ऑफ वर्ड्स, आपने एक 100 वर्ड्स में समरी बनाई, देन यू पुट दैट आर्टिकल और दैट पैसेज इन टू चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट पे आप डालो उसको, एंड देन यू से दैट राइट अ समरी ऑफ दिस इन 100 वर्ड्स, एंड देन यू सी व्हाट इट थ्रोज अप, एंड देन यू कंपेयर योर समरी विथ व्हाट इट हैज थ्रोन, एंड देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी इस पैसेज की और उस पर्टिकुलर चैट जीपीटी टूल की कैसी है, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ऑब्वियसली क्वाइट फेयरली सही होती है वो, एटलीस्ट मेन आइडिया की और समरीज की, और इसमें इसमें इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करने में जब आपने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दे दिए उसको, वो गड़बड़ करेगा, लेकिन ये एटलीस्ट फॉर फॉर ऑल ऑफ दिस इट इज वेरी गुड। बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू दिस कि आप उसको जाके और अपना काम दे दो और खुद अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, देन इट इज अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ ऑफ गेटिंग योर ब्रेन रस्टेड। ओके, जो आपकी फैकल्टीज है, मेंटल फैकल्टीज, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो आपको अपना काम भी करना है और उससे भी फिर आपको एक रेटिफिकेशन ये आपको चेक करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, यू कैन डू दैट। ओके, लेकिन बाकी इसको ट्रस्ट नहीं करना है, ग्रामर हो या कुछ भी हो, इसमें आधी से ज़्यादा गलतियां करता है। सो दैट्स अबाउट राइटिंग समरीज, कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपना देखो इनिशियली थोड़ा सा पेनफुल होता है ये, और हमारे को मोटिवेशन नहीं मिलता, तो इतना भी नहीं करेंगे कि हम हर पैसेज जो कर रहे हैं उसकी करें, एक दो अगर बनाएंगे तो इट विल हेल्प, बिकॉज राइटिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी गुड फॉर अस। आपको आगे जाके यू हैव टू राइट लॉट, ओके, यू हैव टू क्रिएट रिपोर्ट्स, यू हैव टू क्रिएट बिजनेस केसेस, यू हैव टू क्रिएट एनालिसिस, बहुत कुछ करना है आपको अपने, नॉट जस्ट इन योर एमबीए बट ऑल्सो इन योर करियर एज अ मैनेजर। सो आपको उसकी आदत अभी से डालनी पड़ेगी। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक जो ये आप करियर चूज कर रहे हो, एमबीए में घुसने की कोशिश कर रहे हो, एक आपका एक फैंसीफुल आइडिया होता है इसका, थिंग्स लुक वेरी ग्लैमरस फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, जैसे हम लोग अगर बॉलीवुड स्टार्स को देखते हैं, या किसी भी ऐसे फील्ड में देखते हैं किसी को भी, मे बी टेनिस प्लेयर्स और क्रिकेट प्लेयर्स, we think that their life is so glamorous, they are always enjoying such popularity, fame, and everybody is out to kind of meet them and be seen with them and selfies and all, but हर प्रोफेशन जो होता है उसके अपने अपने एक साइड इफेक्ट्स होते हैं, ओके, एंड देयर आर इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो आपको दिख रही है वो बड़ी ग्लैमरस है। तो वैसे ही आपको कॉर्पोरेट में भी आपको आप पढ़ते हो कि ओके, एक्स कॉलेज एवरेज प्लेसमेंट 25 लाख, टॉप मोस्ट हाईएस्ट सैलरी 33 लाख, या वाई कॉलेज हाईएस्ट वाज 50 lakhs, एवरेज सैलरी इज 30 लाख। तो आपको वो सैलरी दिख रही है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना है और वहाँ पहुँच के आपको क्या करना है। आपको किसी ने अगर आज अगर IIM अहमदाबाद में दे पहुँचा भी दिया तो आपको काफ़ी चैलेंज होगा, ये कल भी मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, एंड दैट वर्क यू नीड टू गेट इन टू दैट काइंड ऑफ रिगरस वर्क शेड्यूल राइट फ्रॉम नाउ, अदरवाइज उसको उसको आप स्केल अप उस टाइम पे करना आपको बहुत मुश्किल होगा। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, दिस इज समथिंग दैट वी हेट, बट व्हाट टू डू। अगर मुझे 50 लाख की सैलरी चाहिए, 30 लाख की सैलरी चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा, राइट। आप अल्टीमेटली अपने आप को ऐसे ही सांत्वना दे सकते हो। देखो हमारा जो ब्रेन, लिटिल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग मे सीम लाइक सरमनाइजिंग और प्रीचिंग और मोटिवेशनल टॉक्स टू यू, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज फील अभी हमारे पास में टाइम है तो वी कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. Once we get down to the brass tacks, we may not really have that time, but that is also very important. हमारा माइंड जो होता है, तो वी हैव अ सबकॉन्शियस माइंड, राइट, अनकॉन्शियस भी बोलते हैं उसको। एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो हम जो हमारी जो हैबिट्स हैं या हम जो एक इंसान है अंदर से, दैट इज डिक्टेटेड अ लॉट बाय सबकॉन्शियस, व्हाट काइंड ऑफ messages we are getting from our subconscious mind. So if you keep telling your subconscious mind that this is boring, this is routine, this is dull, this is avoidable, then you will always get that kind of message back. But if you tell your subconscious that no, this is very interesting, yaar, I can't think of anything more interesting than this, usko बुद्धू बनाओ, okay, usko बेवकूफ बनाओ, and then it will also give you that same messages.
जैसे आरसी है, लोग आरसी, अरे यार ये क्या इंग्लिश है, रीडिंग आ गई, ये क्या है, तो बोरिंग है, डल है, इसको क्या करेंगे करके, यार हमें तो सीधे सीधे मैनेजर बना दो, हम तो 30 लाख रुपए की सैलरी लेंगे और मजे करेंगे। वो नहीं है भाई वैसा। अगर आप ऐसा मैसेज दोगे उसको, तो आपको वेन एवर यू कम अक्रॉस सच सिचुएशन, आपको उसी तरह से एक इनहिबिटिंग वो मिलेगा मैसेज कि भाई ये तो बोरिंग है, ये तो डल है। बट यू टेल द योर सबकॉन्शियस दैट नो नो, दिस इज वेरी enjoyable, आई एम गोइंग टू एंजॉय। Before you plunge into reading an RC passage, tell your brain that I'm going to learn a lot from this. I'm going to really enjoy it. This is the best thing that will happen to me today. ऐसे messages दो आप subconscious को, फिर देखो आप, there is a whole lot of difference you will see. So ये आपको भले ही बातें लग रही हो, क्योंकि many of you might be thinking कि ये तो सब किताबी बातें, ऐसा नहीं है. This I can tell you from experience that is how the world goes, right? So retention, writing summaries. Now ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि चलो ये आपने कहा कि राइटिंग समरीज हमने कर ली भाई, आपने कहा कि साल में हमें सीखना है, राइटिंग समरीज करनी है, लेकिन अब ये बताइए कि जब कैट का पैसेज करेंगे वहां पे बैठ के, तो वहां कहाँ समरी लिखने बैठेंगे? वेरी वैलिड पॉइंट। यू डोंट हैव द टाइम देयर टू राइट समरीज। फॉरगेट अबाउट राइटिंग समरी, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, हिलने का भी टाइम नहीं है 8 मिनट में 9 मिनट में अगर पैसेज करना है तो उसके लिए फिर हमें जो ये राइटिंग वाली बात है, ये धीरे 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 हमें इसको अपने मेंटल फैकल्टीज को आउटसोर्स करना पड़ेगा कि अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम मेंटली क्रिएट कर लेंगे समरी। तो व्हाट यू विल डू इज, यू आर रीडिंग अ पैसेज, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, दिस इज द थर्ड पैराग्राफ एंड दिस इज द फोर्थ पैराग्राफ। सो द वे यू बीन यूज्ड टू रीडिंग इज, यहाँ से चले शुरू हुई गाड़ी और सीधे यहाँ पे जाके रुकी। जैसे जो लोग मुंबई में रहे हुए हैं, लोकल ट्रेन में, कोई है क्या, कोई एनीबडी फ्रॉम मुंबई जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, चर्च गेट से दादर से बांद्रा, कहीं कोई है क्या? नहीं है, नो वन अमंग यू। ओके, तो ठीक है, मे बी दिल्ली मेट्रो में, आई डोंट नो वेदर देयर इज अ फास्ट मेट्रो और नॉट, आई डोंट ट्रैवल टू मच इन मेट्रो। जैसे मुंबई में लोकल दो टाइप की होती थी, एक स्लो लोकल होती है जो हर स्टेशन पे रुकती है, और एक फास्ट लोकल होती है जो सीधी मेन मेन स्टेशन पे रुकती है। तो आप, हम जो अभी तक रीडिंग करते हैं वो फास्ट लोकल जैसे करते हैं, सीधे यहाँ से चले और यहाँ रुक गए। बट हमें बेसिकली अब स्लो लोकल जैसे करना है, यहाँ से चले, यहाँ रुके, गिव अ पॉज फॉर 10-15 सेकेंड्स, मेंटली क्रिएट अ समरी। पहले तो राइटिंग में करेंगे, बट देन गोइंग फॉरवर्ड मेंटली क्रिएट अ समरी। ओके ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑथर ने ये चीज इंट्रोड्यूस की है, उसका ये पॉइंट है, वो इस तरीके से बोल रहा है, फाइन, लेट मी सी आगे क्या होता है। अपने आप से डायलॉग करो, वोकलाइज करके नहीं है ना, अपने आप से डायलॉग करना है आपको, और ऑथर से भी जैसे डायलॉग करना है कि अच्छा ऑथर, अच्छा ओके आप ये बोल रहे हो, ठीक है चलो देखते हैं आगे क्या बोलते हो। फिर आप अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे 10-15 सेकेंड्स। ओके, सो इस पैराग्राफ में आपने ये बताया है कि जो आपका ये थ्योरी थी, इसको कैसे चैलेंज किया गया है बाकी के साइंटिस्ट के द्वारा, या दे हैव रेज्ड ऑब्जेक्शंस। ओके, सो नाउ लेट मी रिकलेक्ट। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने एक थ्योरी प्रपोज की थी, सेकंड पैराग्राफ में आप ये बता रहे हो कि इसको कैसे कैसे दूसरे साइंटिस्ट ने रिफ्यूट किया है। फाइन, लेट मी सी आगे क्या होता है। फिर आगे, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद 10-15 सेकेंड्स होल्ड, देन अगेन यू से ओके। तो अब आप उनके जो रिफ्यूट जो उन्होंने किया है, जो चैलेंजेस रेज किए हैं आपकी थ्योरी के अगेंस्ट, आप उसको आंसर कर रहे हो कि वाई दिस ए गाय हु हैड रेज दिस क्वेरी इज रॉन्ग एंड वाई यू आर राइट। सो आपने ये किया, ठीक है। तो सबसे फिर से रिकलेक्ट किया, ओके पहले में आपने इंट्रोड्यूस की थ्योरी, दूसरे में आपने कहा कि इसमें इन लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं, तीसरे में आप उन ऑब्जेक्शंस को एड्रेस कर रहे हो, और चौथे में आपने पढ़ के उसके बाद में यहाँ पे आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि ठीक है ये ऑब्जेक्शन थे, उसके बावजूद आई रीटरेट दैट दीज आर राइट एंड दिस इज द वे इट शुड बी एंड द फ्यूचर लुक्स लाइक दिस। So now, when you are, by the time you are here and you are again recollecting, you have a very clear map of the passage in mind. कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये हुआ, दूसरे में उसने ये किया, तीसरे में ये किया, और चौथे में उसने ये। नाउ यू आर रेडी टू हैंडल एनी क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी आपको मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होगा कि 2 क्वेश्चन तो आपको बिना इवन पैसेज को पढ़े हुए मिल जाएंगे, वापस से देखे हुए। मे बी 1 or 2 क्वेश्चन विच नीड मोर डिटेल्ड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द पैसेज, यू मे नीड टू रीड इट अगेन। बट मोटा मोटा आपको 2, कई बार 3 क्वेश्चन भी ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पे आपको जाने की जरूरत। देखो जाने की जरूरत पड़ी तो जाएंगे हम, वी विल गो एज मेनी टाइम्स एज वी नीड। बट द पॉइंट इज कि आपने एक बार अगर मैप पूरा क्रिएट कर लिया दिमाग में, आपको पूरा आर्ग्यूमेंट बहुत क्लियरली समझ में आ गया, तो फिर आपको क्वेश्चन फिर कितने भी ट्रिकी बना दे, कितने भी टेढ़ा बना दे, 4 में से 3 तो हम सही कर ही लेंगे। एंड दैट्स अ वेरी गुड एक्यूरेसी, 75% इज अ गुड एक्यूरेसी। ठीक है, वी मे नॉट, बिकॉज वर्बल इज अ वेरी सब्जेक्टिव एरिया। ओके, एक बात ध्यान रखना आप कि वर्बल जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव एरिया है। आरसी, एक मैं किसी चीज को किस तरह से देख रहा हूँ, ऑथर ने एक सबसे पहले कुछ लिखा ना, ऑथर हैज नॉट पोस्ट दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो आरसी में ऑथर हैज रिटन दिस
ठीक है, तो ही हैज ब्रॉट इट फ्रॉम लेट्स से इन आर्टिकल इन इकोनॉमिस्ट, तो ये भी कैट में उसने पैसेज बनाया, लेके आया, वो पैसेज वहां से उठा के ले आया। अब ये जो क्वेश्चन बनाया ये तो उसने उसने बनाया एग्जामिनर ने, ऑब्वियसली ना ऑथर और उसके बीच में भी कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है, इसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से किया है। नाउ व्हेन आई एम डूइंग दिस क्वेश्चंस माय अंडरस्टैंडिंग आल्सो मे डिफर टू सम एक्सटेंट फ्रॉम दिस गाय, तो अभी दो लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है और वो होगा, बिकॉज दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, जिस तरीके से ये प्रोफेसर आयाम का उसको देख रहा है या जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ उसको, मोटा मोटा ठीक है, लेकिन एक आध जगह कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो द पॉइंट इज कि आपने ये जब पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया तब आपके दिमाग में बहुत क्लियर मैप बन गया। अब आपको कितने मिनट एक्स्ट्रा लगे, मैक्सिमम 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा आपको इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बट इज वेल वर्थ इनिशियली। बाद में आपको ये भी नहीं करना है, आपको ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही चलते चले जाओगे और अपने आप ही वो क्लियर होते चले जाएगा, बिकॉज जहाँ पे आप अटकोगे वहीं पे आप जाके थोड़ा सा दोबारा उसको देख लोगे एंड यू विल बी एबल टू डू इट। तो 3 स्टेजेस में हम करना है, पहले में यू विल नीड टू राइट, ओके, फर्स्ट पैराग्राफ की क्या समरी है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, then in the second stage you need to mentally stop here and look back and correlate each of the paragraphs, and then in the end that will be done automatically. So this is how one should read, not just a passage but anything for that matter. तो आपको रिटेंशन जो है काफ़ी अच्छी होगी, अदरवाइज यहाँ से चालू हुए और यहाँ से मुंबई फास्ट लोकल चर्च गेट से बैठे विरार में उतर गए, बीच में क्या हुआ पता ही नहीं चलेगा। ओके, सो दैट्स द थिंग हियर। ऑलराइट, सो अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया है इसके ऊपर कोई किसी को किसी तरह की कोई डाउट, शक, शुबा, कोई क्वेश्चन, एनी कमेंट विच यू वांट टू मेक, एनीवन? ऋषि सर बता रहे थे आप लोग उनकी क्लास में बड़ा इंटरेक्ट कर रहे हो काफ़ी, तो यहाँ पे अंग्रेजी में थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ देयर इज अ लिटिल लेस, ओनली मे बी मुंतहा इज इंटरेक्टिंग एंड कपल ऑफ मे बी, आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द चैलेंज, इज देयर अ चैलेंज? यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज यू वांट, आई डोंट केयर, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, कोई भी अपने व्यू है, कोई है ऐसे व्यूज, एनीथिंग? यू मे से दैट वॉट एवर यू आर सेइंग डजंट मेक एनी सेंस, यू माइट इवन से दैट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, Sir, I have a one question. बोलिए। If like paragraph given and it is very difficult and half of the paragraph we read and after that we realize like it is a difficult one. So what we have to do? Like it's a time waste now. नहीं, तो ये आप एग्जाम की बात बता रहे हो? Yes, sir. अभी एग्जाम बहुत दूर है, अभी एग्जाम के बारे में सोचना भी नहीं है हमको, ठीक है। एग्जाम में हमारा क्या होगा, अगर हमने पैराग्राफ पढ़ा हमें समझ नहीं आया तो क्या हम उसको आगे कंटिन्यू करें या छोड़ दें या क्या करें, वो अभी हम उस सिचुएशन में बहुत बाद में पहुंचेंगे, क्योंकि हम मतलब ये तो वही बात है कि आप अभी मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना शुरू किया है, मैं बेस कैंप से ऊपर अभी चढ़ रही हूँ, अब मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ये थोड़ा एरिया रफ लग रहा है, तो क्या मैं छोड़ दूँ चढ़ना? नहीं, अभी तो प्रिपरेशन कहाँ हुई है हमारी। when we reach that stage then you will not even have this question, you will feel that every passage is a breeze, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। we will aim for that कि हम इतने पैसेज और इतने हर तरह की चीज़ें कर लें कि आपको किसी भी तरह की उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, है ना। तो अभी हमें वो चीज़ सोचनी है कि पैराग्राफ अगर हम पढ़ रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, वो बहुत बात की बात है। अभी तो हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, राइट? So I hope that answers the question. Okay. All right. So now let's move and very quickly look at one or two points here. One or two points in the sense what all you need to look for in a passage. जब आप एक पैसेज पढ़ते हो, ठीक है, कंपोनेंट्स, तो पैसेज में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको एक मेन आइडिया, देखो कोई भी कुछ भी अगर लिख रहा है, anybody is writing anything, whether a book or an article or anything, there is a main idea, okay, he wants to convey something and you should be able to capture that main idea in 1 or 2 sentences. किसी भी पैसेज का, किसी भी आर्टिकल का हमें मेन आइडिया 1-2 सेंटेंस में कैप्चर करना आना चाहिए कि ये पॉइंट क्या है, इसका बोलना क्या चाह रहा है, ये व्हाट इज ही ट्राइंग टू कन्वे, राइट? जैसे ये वाला मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसने कोई थ्योरी बताई है, फिर ऑब्जेक्शन बताए हैं, फिर उसके ओवरकम कैसे कर रहा है ये, हाउ डज ही आंसर दैट, एंड देन ही कंक्लूड दैट दिस इज द वे थिंग्स विल प्रोग्रेस. So he's raised the points on which his critics have objected and clarified those points. That's the main idea of it, and suggested the way forward. That's the main idea. तो आपको हर पैसेज का
मेन आइडिया निकालना आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चाहे क्वेश्चन दिया हो या नहीं दिया हो। कई बार तो क्वेश्चन भी होता है मेन आइडिया का पैसेज में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको करना ही है वो। लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो हम मेन आइडिया हर बार कोई भी पैसेज करेंगे उसमें वी विल डिस्कस द मेन आइडिया। आई विल आस्क यू ऑल टू राइट द मेन आइडिया एंड देन आई विल टेल यू माय मेन आइडिया एंड देन विल डिस्कस कि ओके इसमें ये क्यों है, ऐसा क्यों। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड इज द सपोर्टिंग आइडियाज। सपोर्टिंग आइडियाज ना, ऑब्वियसली एक ऑथर जब मेन आइडिया अपना बता रहा है तो किसी बेसिस पे बता रहा है। बेसिस क्या हो सकता है? ये बेसिस कुड बी सम रिसर्च, basis could be some experiment, basis could be some survey, basis could be he could refer to somebody in the past who has said similar things, or he could cite something, he could quote someone, or he could have his own views. He could say that I am an expert on this and these are my views and that's how I think, that's why I think this should be done. तो ऑथर जो है अपने आइडियाज को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में टोन क्या होती है उसकी, राइट? व्हाट इज द टोन? किसी भी पैसेज में एक टोन होती है। टोन मतलब क्या है कि एटीट्यूड, राइट? आप अगर मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, अभी अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो आपकी एक टोन है। ओके, सपोज आई एम वेरी एंग्री विथ यू, तो मैं आपको डांट रहा हूँ तो मेरी टोन है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, तो देयर इज अ डिफरेंट टोन, राइट? इफ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर देन आई हैव अ डिफरेंट टोन। इफ आई एम वेरी पेसिमिस्टिक और डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग देन देयर इज अ डिफरेंट टोन। तो टोन आपकी एक पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है या न्यूट्रल हो सकती है। दीज आर द ब्रॉड, इसके अंदर देर आर हंड्रेड्स ऑफ सब स्पेसिफिक टोन्स। ओके, ये तो ब्रॉडली हो गई फ्रॉम 30,000 फीट कि एक ऑथर किसी को प्रेज कर रहा है, किसी की तारीफ कर रहा है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर बता रहा है, तो वो उसकी पॉजिटिव टोन हो गई। ठीक है, ह्यूमर है उसमें। और अगर वो किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, बुराई निकाल रहा है उसमें, फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा है, दैट इज अ नेगेटिव टोन। और अगर वो ऑब्जेक्टिव है, ही इज न्यूट्रल, ही इज प्रेजेंटिंग बोथ द गुड एंड बैड ऑफ द सिचुएशन, देन इट इज न्यूट्रल। सो दीज आर द टोन्स। तो आप जब एक पैसेज को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेन आइडिया क्या है ऑथर का, सपोर्टिंग आइडिया क्या है, इसमें उसकी टोन क्या है, हाउ इज ही ट्रीटिंग दिस, व्हाट इज हिज इमोशन हियर, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड लुक फॉर। समटाइम्स इट कुड बी जस्ट नैरेटिव और इंफॉर्मेटिव। Okay, he's just informing you, he's just narrating a story, he could be just describing also. एक बहुत अच्छा सीन है कहीं पे, he's gone for a picnic somewhere maybe, or he's watched a movie, or he's read a book and he is describing the book। देखो कितना अच्छे तरीके से इसने ये लिखा है, कैसे कैसे इसने वर्ड्स यूज किए हैं, कितने बढ़िया तरीके से इसने प्रेजेंट किया। तो he could be just describing also, right? So ये चीजें हमें जैसे ही हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमें दिमाग में आनी चाहिए, सब इसकी टोन क्या है, सपोर्टिंग आइडिया क्या है, मेन आइडिया, right? So having said that, I've been talking for quite some time. Let's do some exercise. तो हमारा जो कोर्स है इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम देखिए, इसमें ये जैसे इंट्रोडक्शन है भी, इसके बाद में हम we will practice of course in every session that we'll have. There are some basic session that will happen. Okay, एक basic session में हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, राइट? फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे सिमिली, मेटाफर। ऑथर अपनी लैंग्वेज को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑथर यूजेज मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच। So we need to know. Yesterday also we talked about figures of speech in our verbal section. So figures of speech क्या क्या होते हैं उसके बारे में डेप्थ में जाएंगे हम। टोन्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम बेसिक्स में डेप्थ में जाएंगे। क्वेश्चन टाइप्स कितने टाइप के होते हैं उसके अंदर जाएंगे। व्हाट आर द वेज इन विच रॉन्ग ऑप्शंस आर क्रिएटेड, उसके अंदर जाएंगे, राइट? तो इस तरह से किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सब हमारे बेसिक्स के सेशंस होंगे। बट and then we will practice a lot of theme based RCs as I explained yesterday, कि हम थीम पकड़ लेंगे। जैसे फिलॉसफी है उससे रिलेटेड पैसेजेस करेंगे एक दिन, तो फिलॉसफी के हम मेन एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। ओके, आई विल गिव यू सम 10-15-20 मिनट्स ऑफ एन ओवरव्यू ऑन द बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी। उसके कितने ब्रांचेज होती हैं, क्या क्या ब्रांचेज होती हैं उनमें, उसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन थे, मेजर कौन कौन हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। देन वील टॉक अबाउट वन डे लेट्स से सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, ये क्या होते हैं, राइट? तो इस तरह से हमारे जो सेशंस होंगे उसमें हम 15-20-25 मिनट वी विल डिस्कस। ओके, एंड देन वी विल डू RCs बेस्ड ऑन दोस। तो इस तरह से वी विल कीप मूविंग। ओके, in between, as I said yesterday, I'll be giving a lot of assignments. Okay, there are different tools that I have to give you assignments. Google Forms है, Common Lit Passages करके है, उसके passages भी, और
इसमें भी आई कैन गिव यू डिफरेंट लेवल्स, जैसे सम पीपल दे नीड लिटिल मोर हेल्प, लेट्स से, ठीक है। कुछ लोग आप में से होंगे जो मे बी थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंज्ड हैं इन टर्म्स ऑफ, इतना प्रैक्टिस नहीं किया आज तक या करना है, तो वी विल डू बेसिकली इनिशियली लिटिल ईजियर वंस, ओके। तो स्पेसिफिकली आपके लिए मैं थोड़े ईजियर पैसेजेस आपको निकाल निकाल के दूंगा एज होमवर्क और होम असाइनमेंट्स, ओके, विच मे नॉट बी गिवन टू somebody who's already at a certain level. तो आप लोगों को अपना एक कंफर्ट भी डेवलप करना पड़ेगा मेरे साथ में, सो दैट यू टेल मी, ओके। आपको ऑफ कोर्स फॉर माय जजमेंट और असेसमेंट आल्सो आई विल बी डूइंग दैट, कि जिनको थोड़ी सी ज़्यादा लिटिल मोर बेसिक लेवल्स ऑफ पैसेजेस चाहिएंगे उनको थोड़ी लिटिल मोर बेसिक लेवल्स मिलेंगे, एंड जिसको वी नीड, यू नो, दे नीड ओनली द लेट्स से एडवांस लेवल, द वी, ऑफ कोर्स क्लास में हम एक मिक्स रखेंगे, क्लास में की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दी असाइनमेंट्स, ओके। और जो हम होमवर्क होगा, तो वो होमवर्क में जिन लोगों को थोड़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए उन्हें थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्री पैसेजेस मिलेंगे। क्लास में एक मिक्स रखेंगे, दे विल डू इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ऑल काइंड्स ऑफ पैसेजेस इन द क्लासेस। सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ऑलराइट, तो चलिए आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। वी विल टेक अ लुक एट वन पैसेज नाउ. This is not exactly a typical cat kind of a passage. This is a passage which has got maybe many more paragraphs than what you would get in a cat passage. And इसमें एक ये है कि after every interval of let's say a couple of paragraphs, after every some logical interval, there are guiding questions. ठीक है, तो guiding questions, तो it's like यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ेंगे and then we will kind of take a recap कि क्या है समरी छोटी सी इसकी, एंड देन इसका गाइडिंग क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन वील मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, अगेन वही करेंगे, देन वील मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, देन वही करेंगे, एंड देन इन द एंड वी विल कम टू सम ओवरऑल असेसमेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज। तो इस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग हम सीमेंट करेंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, नॉट इंटरेस्टिंग, आई वुड से इट इज अ वेरी ग्रूसम चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होलोकॉस्ट की। हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस टर्म होलोकॉस्ट? होलोकॉस्ट सुना है किसी ने? यस रिभव, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? बेसिकली सर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो ज्यूज का परसिक्यूशन हुआ था उसे। करेक्ट, परफेक्ट। तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जो नाजीज ने ज्यूज का परसिक्यूशन किया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, मिलियंस ऑफ ज्यूज वर किल्ड, राइट। दिस इज अ वेरी बिग ब्लॉट ऑन ह्यूमन हिस्ट्री एंड पर्टिकुलरली जर्मन हिस्ट्री, एंड एंड दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो वो बहुत जगह पे आपको वो आएगा, होलोकॉस्ट, प्रोग्राम, जेनोसाइड, ये सारे जो टर्म्स हैं वो आपको मिलेंगे, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। वी शुड नो टू सम एक्सटेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट वी बिकम एन एक्सपर्ट, बट वी शुड नो। तो हमें ये पैसेज करना है। व्हाट आई विल एक्सपेक्ट इज, अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा, पहला ये पढ़ने हैं दो, ये इसकी एक छोटी सी एक लाइन की समरी अपने पास क्रिएट करनी है, एंड देन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। Sir, तो will you just elucidate a bit more what is that Holocaust? हाँ, वो अभी नहीं, अरे ये पढ़ने से क्लियर हो जाएगा पूरा। Okay, sir. This passage will make it absolutely clear. Tomorrow you will be able to write an essay on it also. Okay. All right. So let's start with this. इसमें मैं एक काम और करता हूँ। अच्छा, आप लोग सारे के सारे उस ग्रुप में हैं जो मैंने बना रखा है VARC का? एवरीबडी इज देयर ऑन दैट ग्रुप? Yes, sir. तो मैं उसमें ये शेयर कर देता हूँ डेक को, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, और यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन हैव अ लुक एट दैट डेक आल्सो ऑन द ग्रुप। तो मीन टाइम यू कैन स्टार्ट रीडिंग। हमें करना ये है कि 3 मिनट के अंदर हमें ये पढ़ना है, और इसकी एक लाइन की समरी बनानी है यहाँ से यहाँ तक की, और इस क्वेश्चन को आंसर करना है। दिस आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू डू। तो 3 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। यू कैन स्टार्ट।
You can raise your hand once you finish it. Okay, chalo. So let's see who will give me the summary of this in one sentence. Yes, Munta, go ahead. Sir, do I have to tell among the four option or I have to No. summarize? Summary. One sentence summary of this. Okay, so basically Holoctus was like during the German rule, people belonging to Jews community or other groups which were inferior were being killed, or maybe they were sacrificed by fire on the basis of racial discrimination. Okay, good. Anyone else? Just one-liner summary of this, Harmeet? Yes, sir. Sir, German believed that they were superior to other communities. Come again, थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आई. Sir, German believed that they were superior to other communities. हाँ, they are superior to other communities. Correct. Yes, sir. Correct. Very good. So, okay, Saptarishi has also given here his views. Holocaust was a systematic persecution of racially or ideologically inferior groups by Nazis who considered themselves superior. First class. Fantastic. तो अब इसमें देखिए आपने जो नाजीज हैं, they used to consider themselves superior and the other groups, okay, whether it is, तो इसमें दो टाइप के ग्रुप्स की बात की गई है, not just the Jews but also other groups, and because they were perceived to be inferior, so they were persecuted. Now this term persecution, इसका मतलब कौन बताएगा? Who will tell me the meaning of this word persecution? Anyone? What is actually meant by this is a very important word, you should know this. बहुत जगह यूज होता है ये, इनफैक्ट हर जगह यूज होता है. बताइए, हरमीत बताएंगे परसिक्यूशन मतलब? एनीवन? परसिक्यूशन मतलब बेसिकली Sir, I don't know. ओके, हॉस्टिलिटी और इल ट्रीटमेंट, ओके, और harassment of any community. So anyone based on their ethnicity, let's say, okay, or their caste, or their religion, or their gender, or their sexuality, anything. तो किसी भी बेसिस पे अगर आप किसी भी एक इंसान को या कम्युनिटी को इल ट्रीटमेंट कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो, होस्टाइल हो, all that is covered under persecution. मतलब this could mean even killing, this could mean making their life miserable, this could mean anything. तो आपने अगर Not to genocide? No, genocide, see, genocide is a much wider term. Genocide could be a part of it. Genocide means killing in mass killing. तो अगर आप जरूरी नहीं कि आप किसी को जेनोसाइड कर रहे हो तो ही persecute कर रहे हो. You could be harassing them, you could be not giving them jobs, you could be making their life miserable, you could be allowing them, जैसे कई जगह होता है ना, कम्युनिटीज बोलती हैं हमारे को तो ये घर भी नहीं, रहने भी नहीं देते, यहाँ पे जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हमारे अगेंस्ट में, और हमें किसी ना किसी तरीके से तंग करते रहते हैं, लाइफ मिजरेबल करके रखी हुई है. तो जरूरी नहीं कि जेनोसाइड करो आप परसिक्यूशन के लिए, राइट? सो दिस इज सिस्टमैटिक, ब्यूरोक्रेटिक एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड. तो होलोकॉस्ट जो है इट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड, मीन जर्मन कंट्री वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, and 6 million Jews, Adolf Hitler and Nazi regime. So this Holocaust word we should know, this means sacrifice by fire, इसका Greek origin है, and Germans they believe that they were superior and the rest of the people were inferior, particularly the Jews. In fact आज भी अगर हम देखेंगे जो एक वर्ड है आपको पता होनी चाहिए, एंटी सेमिटिसिज्म. ये सुना है आपने? अभी बहुत चल रहा है ये एंटी सेमिटिसिज्म. So are you aware of the issues going on at Harvard University, UPenn and MIT?
बिकॉज व्हाट इज हैपेंड इज, ये हमास और जो इसराइल का युद्ध चल रहा है, इसके अंदर बेसिकली एंटी सेमिटिज्म मीन्स दैट दे डोंट वांट टू हैव एनी ज्यूज, ओके, दे वांट टू वाइप आउट द नेशन ऑफ इजराइल, दे वांट टू वाइप आउट एंटायर Jewish community, and that hatred towards Jewish is basically called anti-Semitism. So ये तभी से चला आ रहा है, okay, they are thought of as they are inferior, and the other groups also like Roma, Gypsies, disabled, and all these people also were persecuted on political, ideological, and behavioral grounds. Among them, communist, socialist. Jehovah's Witness is a special type of Christianity में एक ग्रुप होता है, उनके कुछ अलग बिलीफ होते हैं, तो जितना आप समझ लो दैट इज इनफ. तो even homosexuality, this is considered to be a crime there, and if you are a homosexual, then you will be persecuted against. So this passage talks about this, right? How the Germans or how the Nazis persecuted not just Jews but other groups also, because they thought they were superior. So what was the cause of Holocaust? Let's answer this question. बताइए, what is the answer? Sir, B. B, Bombay. All agree? Yes, sir. Correct. Hitler believed Germans were superior to all other groups, so that's why it was persecuted. Great. Let's move to the next segment. ये मेरा ना कुछ गूगल ड्राइव चल नहीं रही है फोन में, तो आई एम नॉट एबल टू सेंड इट. ओके, आई विल कीप ट्राइंग. मीन टाइम आप यहीं से अपना काम चलाओ अभी. आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड, जा ही नहीं, वो खुल ही नहीं रहा है वहां पे. ऑलराइट, लेट्स मूव टू दिस. सो प्लीज रीड दिस. अब आपको ये पढ़ना है, उसके बाद में एक लाइन की समरी बनानी है इसकी पूरी की, और ये क्वेश्चन आंसर करना.
Okay, done. Yes. All right, चलिए तो इसका एक लाइन में क्या हो सकता है? Anyone who would like to share the one line summary of this? So the Nazis believe that they will allow people to live only who follow them, their culture, what the orders are given by them. They do not have any say in their, like, they used to just cover a particular place. They used to just kill people around there, and if they were not ready to follow what they wanted, either they were killed or they were left to die by starvation. Okay, all right. Yes, Vibhav. So 2 of 3 European Jews were murdered under the final solution by Nazis, and not just Jews. Many gypsies, mentally and physically disabled, Soviet and Polish and homosexuals were also killed on the basis of their differences. Great, very good. Yes, Shubhanshu. So I have a question, Vivek. Yeah, I don't want to say all this. come again. I want to. I don't just work out every three Jews. आपकी आवाज नहीं आ रही थोड़ी सी, शुभांशु. हेलो शुभांशु. हाँ, यू कैन टाइप बिकॉज आपकी आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, कोई बात नहीं. हरमीत. ओके, ठीक है. सो सी बेसिकली दिस पैसेज गिव्स फर्दर डिटेल्स, राइट? जो सो प्राइमरी देयर प्राइमरी टारगेट वाज यूरोपियन ज्यूज एंड the other groups also, like gypsies, Poles, and Soviet prisoners of war, all these people also, and whoever's ideology did not match with theirs, right? So important criteria was not just the European Jews, but also people whose ideologies did not match with theirs, right? And their political opponents as well. So all these people were persecuted, and out of that they murdered millions of people. Fine. Let's look at the second question. Which of the following groups did the Nazi primarily target? A. A. Option A. Very good. Fantastic. So these, see, ये जो इस तरह के पैसेज जो मैं कराऊंगा आपको, या ये I mean these are simple questions, guiding questions. That means time to time बीच में पैसेज जो है उसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इससे चेक कर सकते हो, and then we'll move and in the end do the assessment questions. All right. आगे चलते हैं. Let's go to the third part. Yes. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन कि एक मिनट क्वेश्चन है कि पिछले वाले में सी क्यों नहीं है. ओके, तो सी इज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स. नाउ देखो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड दे प्राइमरीली टारगेट. तो प्राइमरीली आप यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी विक्टिम्स ऑफ नाजी रेसिज्म. So although Jews whom the Nazis deemed a priority danger were the primary victims, the other victims included 200,000. तो यहाँ पे इसने एक प्राइमरी विक्टिम बताए हैं और एक अदर विक्टिम बताए हैं. So that's why this political opponent, these are not the primary victims. Primaries were European Jews. Okay, so I hope that answers. All right. चलिए आगे चलते हैं.
So I've just shared this document on the group also. हो गया? Okay, so let's understand this particular part of it. So in the early years of the Nazi regime, the National Socialist government established concentration camps to detain real and imagined political and ideological opponents. So Nazi regime के early years, तो war अभी start नहीं हुआ था. When did the war start? ये जो war कौन से war की बात हो रही है? This is WW2. When did it start? Anyone? 1945. नहीं 45 में end हुआ. Oh, sorry, 41. 39. Okay, 39 to 44, 45, almost 45 तक चला था ये. Okay, so 1939 it started. So here what he's talking about is in the early years, okay, जब ये war start नहीं हुआ था, तब तक इन्होंने concentration camp बनाना शुरू कर दिया. And increasingly in the years before the outbreak, they incarcerated Jews, Roma, and other victims of ethnic and racial hatred in these camps. What is the meaning of the word incarcerated?
इनकैर्सरेटेड मतलब क्या होता है? एनीवन? इम्प्रिजन, यस, जेल करना किसी को, इम्प्रिजन और जेल somebody, जेल में डाल देने को इनकैर्सरेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू शुड नो दिस. बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत जगह आएगा ये इनकैर्सरेशन. ओके, मीन्स किसी को जेल में डाल. तो ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक कि इन्होंने अर्ली ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाने, और उसमें इन लोगों को डिटेन करते थे, और ज्यूज को, रोमा को, अदर विक्टिम्स को. टू कॉन्सेंट्रेट एंड मॉनिटर द ज्यूइश पॉपुलेशन एज वेल एज टू फैसिलिटेट लेटर डिपोर्टेशन ऑफ द ज्यूज, the Germans and their collaborators created ghettos. What is the meaning of ghettos? Ghettos सुना है आपने कभी? Anyone heard the word ghettos? Common word है. देखो, ghetto basically is like a slum. Okay, it's a slum. Yeah, cramped living space. You can call it a slum in our local or common language. एक तरह से स्लम होता है. तो स्लम ना भी हो, इवन अगर बिल्डिंग भी हो, तो बहुत ही नैरो और छोटी सी जगह होती है जहाँ पे एक रेशियल माइनॉरिटी रहती है. तो अगर आप अमेरिका में न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सिर्फ ब्लैक्स होते हैं, राइट. वी हैव ऑल्सो सर्टन एरियाज जहाँ पे सिर्फ कुछ कम्युनिटीज, बहुत ही छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट. तो दैट इज कॉल्ड अ गेटो. तो एक तरह से स्लम भी बोल सकते हो आप, चौल बोल सकते हो. हमारे यहाँ पे आपने मुंबई में चौल होती हैं, राइट. कई पिक्चरों में देखा होगा आपने चौल, उसको भी एक तरह से घेटो बोल सकते हैं. बाबूराव और ये रहते थे ना जहाँ पे, वो जब उनके वो पैसे लूट के भाग गए थे, अनुराधा, ध्यान है आपको? इन द सेकेंड वन दे वर लिविंग इन दिस चौल, Yes, sir. राइट. तो इस तरह की जो जगह होती है इसको आप एक घेटो बोलते हो. ट्रांजिट कैंप्स, फोर्स्ड लेबर कैंप्स इन ऑर्डर टू कीप द ज्यूज ग्रुप क्लोजली टुगेदर ड्यूरिंग वॉर ईयर्स. German authorities also established numerous forced labor camps both in so-called Greater German Reich and in German-occupied territory for non-Jews whose labor the German used to exhort to exploit. तो ये अपने इन्होंने इनको सबको एक साथ रख दिया because they wanted to deport them later. तो सारों के सारों को एक साथ रखने के लिए इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए, गेटोज बनाए, फोर्स्ड लेबर कैंप्स बनाए, जहाँ पे इन सबको रखते थे. Following the invasion of Soviet Union in 1941, तो now Soviet Union also got involved. Now देखो, अब ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है, इसमें दो, विच साइड वर देयर? एक साइड थी एक्सिस पावर्स और एक थी एलाइड पावर्स. सो जर्मनी, एक्सिस पावर्स में कौन कौन थे? जर्मनी और इटली और जापान. वेरी गुड. So these three were the part of Axis powers. And what were the allied powers? America, USSR, Yes, so US, and Britain. US, UK, France, then USSR. These were the big allies. तो ये सब इनके अगेंस्ट थे, right? So invasion of Soviet Union happened in 1941. So these Einsatzgruppen, जो mobile killing units and later militarized battalions of order police officials moved behind German lines to carry out mass murder operations against Jews, Roma, Soviet state Communist Party officials, German secret service and police units supported by these murdered more than 1 million Jewish men and women. अच्छा, अब हम जब एक पैसेज पढ़ रहे हैं तो आपको कई चीजें जो है वो क्विकली उस पे से निकल के जाना है. जैसे अगर बहुत डिटेल दिए हुए हैं, कुछ नाम ऐसे दिए हुए हैं, तो अभी तो ठीक है, हम इसको एज अ प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं. जब आप कोई भी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरह की जो चीजें होती है उसमें आप क्विकली आगे निकल जाएंगे. डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दीज डिटेल्स. ओके, एक एक डिटेल्स में हमें देखना नहीं है. वी हैव टू मूव. Between 41 and 44, Nazi German authorities deported millions of Jews from Germany, from occupied territories and from countries of many which Axis allies to ghettos and to killing centers, often called extermination camps, where they were murdered in specially developed gassing facilities. तो 1941 से 44 में इन्होंने इनको मिलियंस ऑफ ज्यूज को जर्मनी से बाहर डिपोर्ट कर दिया, और गेटोज और किलिंग सेंटर्स में, जिसको एक्सटर्मिनेशन कैंप या कॉन्सेंट्रेशन कैंप बोलते थे, जहाँ पे दे वर मर्डर्ड. इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं. किसी ने अगर शिंडलर्स लिस्ट देखी हो या लाइफ इज ब्यूटीफुल, ऐसी बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं. द पियानिस्ट, सो दोज मूवीज डिपिक्ट दिस होलोकॉस्ट. यस, द पियानिस्ट. सो दैट इज अ वेरी गुड मूवी. 2001 में थी. एड्रियन ब्रोडी, उसको ऑस्कर भी मिला था उसके लिए. सो इफ यू गेट अ चांस यू शुड वॉच टू सी द हॉरर्स ऑफ दोज टाइम्स, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे आपको डिटेल में थोड़ा इसने बताया है कि किस तरह से कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, उसमें किस तरह से उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था, राइट. सो व्हाई डिड द नाजी रेजिम फोर्स ज्यूइश पीपल इनटू गेटोज एंड कैंप्स? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ए.
A is the right answer, to detain and eventually murder Jewish people. First class. Let's move to the last part of this passage, the end of the Holocaust. So again, take 3 minutes and read this. All right, हो गया? Yes, sir. Okay, so let's now go to the end of the Holocaust. In the final months of the war, SS guards moved camp inmates by train or on force marches, often called death marches, in an attempt to prevent the Allied liberation of a large number of prisoners. So now, as the war started, this journey toward the end, so these people, the SS guards means these German Nazi, they did not want the Allied forces to liberate these large number of prisoners. तो उन्होंने उनको move करना शुरू कर दिया. As Allied forces moved across Europe in a series of offensives against Germany, they began to encounter and liberate concentration camp prisoners, as well as prisoners en route by forced march from one camp to the other. The marches continued until 7th May, the day the German armed forces surrendered unconditionally. तो ये जो अलाइड फोर्सेज जैसे जैसे यूरोप के अगेंस्ट यूरोप में अक्रॉस मूव कर रही थी, सो दे लिबरेटेड दीज प्रिजनर्स. जितने भी प्रिजनर्स थे धीरे धीरे उनको जहाँ पे भी इनकाउंटर कर रहे थे उनको लिबरेट करते जा रहे थे, और फाइनली 7th May को जर्मन फोर्सेज सरेंडर्ड. फॉर द वेस्टर्न allies, World War II officially ended on the next day, while Soviet forces announced on the 9th May. Right? And in the aftermath of Holocaust, many of the survivors found shelter in displaced person camps administered by Allied powers. And between 1948 and 51, almost 700,000 Jews emigrated to Israel. अब इसराइल में जाके now there's a different story altogether. We'll read about that also. What happened? How was Israel formed there, and then what challenges it faced, surrounded by all the Arab countries, which till date do not recognize and do not want it to exist as a separate country, including 136,000 Jewish displaced persons from Europe. Other Jewish DPs emigrated to United States and other nations. Last DP camp closed in 1957. So this talks about how they were moved and how 700,000 of them went to Israel, and then it ended in 1957.
Crimes committed during Holocaust devastated most European Jewish communities, eliminated hundreds of Jewish communities in occupied Eastern Europe entire. So, a huge number of Jewish communities were eliminated. All right, so let's look at the question here, guided question. What happened at the end of the war? B. Bombay. Surviving European Jews were liberated and relocated. First class, perfect. All right, so I hope सभी को ये पैसेज पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ पे शुरू से एंड तक, and we are ready to now do these 8 questions. Okay, so there are 8 questions in this. ठीक है, so I'm going to give you maybe what 5 minutes में होना चाहिए, 5 minutes में we should do these 8 questions. So आपको मैंने डेक भेज भी दिया है इस पे ग्रुप पे, यहाँ पे भी आप I'll keep moving. तो हमें ये 8 क्वेश्चन करने हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. Sir, can you turn the Yeah, slide sure, paragraph? sure. No, sir, it is asked to refer to paragraph 5. हाँ, पैराग्राफ 5 आपको जाना है, तो आपको यहाँ पे देखिए, ये पैराग्राफ 1 है, ये 2 है, दिस इज द पैराग्राफ 5. You can take a maybe snapshot of it or picture of it. Okay, Yes. I'm just going back to the question.
ऑलराइट, 5 minutes are up. हो गया? Yes, sir. Sir, 2 more minutes, please. ओके ओके, ठीक है. So जिनका हो गया, just hang on. Let the others also finish it. All right, done. चलिए, let's look at the questions. Okay, first, which of this best describes the central idea? C. C option. C option. Okay. Anyone has any differing views, or C is okay? C is fine. Okay. Nazi Germany killed millions of Jews and other targeted groups during the Holocaust. Perfect. Okay. What is the meaning of deplorable? A. A. Horrible. Deplorable means horrible. This is something. To deplore also means to hate. Okay. To deplore is to hate. So something which is hateful. इसका एक और सिनोनिम है abominable, right? Abominable. Okay. So horrible, right? How does the paragraph 5 contribute to the discussion? D. D. Hmm. पैराग्राफ 5 एक बार देख लेते हैं. पैराग्राफ 5 में कह रहा है, as Nazi tyranny spread across Europe, German and their collaborators protected, persecuted, murdered millions of people, other people. ठीक है, between 2 and 3 million Soviet prisoners, non-Jewish police. So इसमें यहाँ पे non-Jews जो थे उनके बारे में बता रहा है कि कैसे उसने दूसरे ग्रुप्स को भी सिमिलरली परसिक्यूट किया है, राइट? तो it suggests that Jewish people were not the primary targets. So is he saying that they were not the primary targets in this, or he is trying to say that his focus is not on Jews, but his focus is on the others? Therefore, we can eliminate this. It provides information about why Jewish people were persecuted during the Holocaust. No, इसमें तो Jewish people के बारे में बात ही नहीं है. World will never know about all the people. ये खुद ही बता रहा है, तो फिर how will he say? Correct answer is D. It highlights the extent of Nazi regime's persecution against many groups of people. Right? So we will look at what he's talking about, not what he's not talking about. So D is the right answer. What does the word concentrate most closely mean? B. Paragraph 8. एक बार paragraph 8 को चल के देख लेते हैं. 6 ये है, 7 8 ये 8th paragraph है. तो यहाँ पे concentrate, to concentrate and monitor Jewish population as well as to facilitate. So which means they want to collect or gather, right? So gather is the right answer. Which phrase from paragraph 8 best supports? बताइए, 5th का आंसर. C.
कीप ज्यूस ग्रुप क्लोजली टुगेदर, सी इज द करेक्ट आंसर हियर, नॉट ए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे। देखिए, टू कॉन्सेंट्रेट एंड मॉनिटर मीन्स टू गैदर एंड देन मॉनिटर, सो दिस कॉन्सेंट्रेट डज नॉट मीन मॉनिटर। ओके, ये जो ए बताया इसने ऑप्शन यहाँ पे, मॉनिटर, दैट मॉनिटर इज डिफरेंट, सो हिज पर्पज इज कॉन्सेंट्रेटिंग एंड मॉनिटरिंग, विच मीन्स इकट्ठा करो और फिर मॉनिटर करो उनको, सो विच मीन्स सी। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। Over time, groups that were targeted by Nazi regime were C. discriminated against and eventually killed. Perfect. Everyone agrees? Yes. How does the conclusion contribute to the overall text? A. A, first class. Correct answer, A. Author's purpose क्या है इसमें? B. All agree? To contemplate, contemplate means? What is the meaning of contemplation? To contradict. नहीं, contradiction. नहीं, अरे, to contemplate means to revise it. हाँ, मतलब think, किसी चीज को दोबारा. ponder. Contemplate मतलब कि सोचना उस पे। ठीक है, to think about something deeply. You are contemplating your future, मतलब आपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो आप। तो ये तो नहीं है कि ये कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहा है कि क्यों हुआ होलोकॉस्ट, क्यों नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कर रहा है। टू प्रोवाइड अ समरी, यस, पूरी समरी बताइए उसने कैसे स्टार्ट हुआ प्री वॉर के टाइम पे, फिर कैसे वॉर के टाइम पे हुआ, कैसे उसने ज्यूज को किया, बाकी लोगों को भी किया, एंड देन हाउ डिड इट एंड। सो पूरा बताया उसने समरी। वी कैन कीप दिस। टू शो हाउ द होलोकॉस्ट हैज शेप्ड मॉडर्न जर्मनी, उसके बाद की बात नहीं हुई है कि मॉडर्न जर्मनी को कैसे उसने शेप किया, दिस हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन दिस। टू क्रिटिसाइज यूएस को तो हार्डली यूएस का नाम है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर बी था। ऑलराइट, सो हाउ मेनी ऑफ यू कुड स्कोर 8 out of 8? प्लीज रेज योर हैंड्स। Anyone has who scored 8 out of 8 can raise the hand. Okay, very good, Riva. That's it. 7. 6. Okay, good. 5. All right. So, जिनके जो भी गलती हुए हैं, have you been able to realize why those questions you marked wrong, and did you could you understand the right answers? Read all the question. Left the 4. So left the 4. Okay, okay. No, left the 3. Last 3. Acha, because time was less. Yes, sir. Actually, I Oh. Okay. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं, as long as you understood. So with that we will wind up today's session. Obviously, but there is a homework for you. आगे एक पैसेज मिलेगा आपको जो मैंने डेक भेजी है, इसमें हमें इसको पढ़ना है, and then we have to just answer these 4 questions. So you can do this whenever you want during the week and send me your answers, and then I'll tell you. And you can also do one more thing. You need to write the main idea of this in a few sentences, maybe main idea of the passage, complete passage, not the paragraph wise or anything, but what you need to do is write the main idea of the passage, then you need to answer these 4 questions. ठीक है, जब भी आपको when you can spend a little time, read this very interesting passage. This is about Shakespeare's vocabulary, so उसको आप पढ़ेंगे and then you will answer these 4 questions. Okay, you can do that anytime during the week and send me. All right, any comments, thoughts, views before we wind up? It was an interesting class, sir. Thank you. थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग की बहुत प्रैक्टिस मिलेगी. ओके, डोंट वरी, क्रिटिकल रीजनिंग का हमारा अलग ट्रैक चलेगा. देयर विल बी इंटेंस प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग आल्सो. ओके, तो काफी उसके कुछ तो बेसिक सेशन भी करेंगे हम. वी विल टॉक अबाउट ओवरव्यू, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, इन्फरेंस कंक्लूजन वाले, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग वाले, पैराडॉक्स वाले, देन flaws in reasoning. So all those, we'll have those sessions, right? We'll have string of sessions on this. Sir, when do we have our next class? So next class is planned on next weekend. Okay, बीच में आपको मैं assignments और बीच में चीजें कुछ भेजता रहूंगा करने के लिए, थोड़ी तो वो करते रहिए. Once you know we stabilize, so stabilize in the sense कि एक बार थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कितने लोग आ रहे हैं और आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी इसके बाद थोड़ा सा आएंगे बोल रहे हैं,
उनकी एग्जाम्स चल रही है, इनफैक्ट काफी लोगों की अभी ये सेमेस्टर एग्जाम चल रही हैं। आपकी भी चल रही है क्या? No, sir, my Hmm. exams will start from 27, so I think I won't be available from 24. अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, वो यू मे मिस मे बी 1 week's वर्थ ऑफ क्लासेस, तो यू विल हैव द रिकॉर्डिंग्स, I आई विल think शेयर। 2 weeks I'll miss. हाँ जी, I'll miss 2 weeks, I guess. Till अच्छा, 7th be available. 24 to 7। Yes, sir. ओके, सो हाउ मेनी वीकेंड्स आर गोइंग देयर, बिकॉज अभी हम वीकेंड पे कर रहे हैं, तो आज 17th है, तो 24th को आपकी एग्जाम नहीं होगी, 25th को होगी, राइट? Sir, it's from 27, but I need some time to just. अच्छा, यू नीड सम टाइम, कोई बात नहीं, ठीक है, सी whoever has got exams and they may not be able to attend, that's perfectly fine, we will see how best we'll cover it up, आपको individual personal level पे भी I'll give you full support to catch up when you resume, so there is no worry on that front, ठीक है? All right. अच्छा, हरमीत की एग्जाम 23 से है, कोई बात नहीं, सी आप लोग अपने एग्जाम की चिंता मत करो, आप लोग अपने एग्जाम दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गिव योर एग्जाम्स विद फुल कंसंट्रेशन, एंड देन वट एवर यू मिस और नॉट एबल टू कैच अप, विल आई विल सी, अगर कुछ सेशंस फिर से करने पड़े, कुछ आप लोगों के लिए अलग से टाइम पे तो कर देंगे, वीकडे में या कभी भी, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है उसमें, ओके? एंड recordings also will be there, so full support will be there, so you don't have to really worry about missing a few couple of weeks, okay? All right. Okay, guys. Thank you so much and have a good day ahead. Bye-bye. I'll see you. Thank you, sir.